Assalamu alaikum and welcome to the ninth week of Total Quality Management. And here I am your lecturer, Mohammad Irfan. So today we have the same lecture that we have discussed in the last week, and the name of the lecture is Partnership and Resources. So before starting the lecture, we will discuss and have a quick review what we have done with the last week. Okay. Before going with a quick view, I hope you all are done with your assignments and there is you will be have no see any problem to getting understand the questions that has been given to your assignments and the midterms. If you have listened all my lectures, so I am pretty much sure that you have not seen any kind of uh, problem to get understand the questions that should be on your midterm assignments exams. Okay, so what is the partnership and resourcing that we give the introduction? I don't give you the introduction because already have been done in the last week. I just give you the overview of this. We have discussed about the effective partnership. In the effective partnership, we have certain kind of impact that has been uh, giving to the effective partners. The first impact is identify key strategic partners, design and development relationship to deliver maximum benefit, structure value adding supply chain partnerships, ensure culture fit and mutual development, share knowledge and learning with partners, improve process together in partnerships, measure performance of partnership and feedback. These all the factors that are impacting to the object to make a effective partnerships. And we have discussed all these factors and all this impact on the effective partnership with the great understanding of examples. तमाम चीज़ें जो है वो लास्ट वीक जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी और नॉट ओनली फॉर द डिस्कस वी हैव डिस्कस सम रियल टाइम एग्जांपल्स टू ताकि आप लोगों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो जाए ओके so after we have discussed the effective partnership we are able to be now to establishing a partnerships. This slide also covered in the last week. I just giving you a quick review. And on the review we have discussed आप जब आपको पता चल गया है कि पार्टनरशिप क्या होती है आपको पता चल गया है कि इफेक्टिव पार्टनरशिप कैसे बनती है ठीक है अब आप जो है एबल हो चुके हैं यू आर एबल नाउ यू आर कैपेबल नाउ टू मेक अ और टू एस्टेब्लिश अ पार्टनरशिप और वो एस्टेब्लिशिंग पार्टनरशिप के लिए आपके पास जो पर्टिकुलर एरिया में जो आपको काम करना पड़ता है वो द मैक्सिमाइज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ what is to be delivered by the partnership. The need of the customer and the capability of the supplier must match perfectly its satisfaction or loyal able to be result. Understanding what represent value of money, getting to commercial relationship rights. मतलब ये तमाम चीजें जो है वो हमने बड़े तरीके से जो है वो कवर कर ली थी लास्ट वीक सो आई डोंट थिंक कि हमें बार बार जो है इसको देखना चाहिए बस थोड़ा सा ये है कि आपको रिव्यू हो जाए ठीक है यू कैन गेट इन अ पेस फॉर द lecture of today okay all right so here we have the starting with the first topic the subtopic from the partnership the role of purchasing in partnership
The important thing is uh, that you have know about the partnership, you have know what is effective partnership, you are know how to establish and when you will be able to establish a partnerships. Okay, आपको prerequisites जितने भी हैं वो आपके पास जो है वो मौजूद हैं, and you are pretty much good and pretty much knowledgeable for preparing any kind of partnerships. Okay, देखिए ये आप अपने दिमाग से थोड़ा सा जो है वो थोड़ा broadly आपको सोचना पड़ेगा. Try to understand and try to get reach your ability to understand and to give your vision in the right way. तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की पार्टनरशिप्स होती हैं, ठीक है. पार्टनरशिप को एक तरह की नहीं होती. हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो पार्टनरशिप्स मौजूद होती हैं. सो वी हैव अ पार्टनरशिप ऑन हमारे पास सप्लायर की पार्टनरशिप्स होती हैं. हमारे पास जो है वो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है परचेजिंग पार्टनरशिप्स होती हैं. वी हैव अ सेलिंग पार्टनरशिप्स. We have a supply chain partnerships. We have a processing partnerships. We have a capital partnerships or investment partnerships. ठीक है. मतलब कि डिफरेंट किस्म की जो है वो हमारे पास जो है पार्टनरशिप्स मौजूद होती हैं. अब हर पार्टनरशिप की जो है वो अलग सब एरिया जो है वो हम डेवलप कर रहे होते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल पार्टनरशिप की अगर आप बात कर लें, ठीक है, तो कैपिटल पार्टनरशिप में आपके पास जो है वो दो किस्म के पार्टनर्स होते हैं. एक आपके पास स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं और एक आपके पास वर्किंग पार्टनर्स होते हैं. तो स्लीपिंग पार्टनर्स से वर्किंग पार्टनर्स के अंदर क्या फर्क होता है? ये वर्किंग पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो आपके साथ कंपनी में काम कर रहे होते हैं. आपके साथ जो है कोई भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल आपका काम मौजूद है, ठीक है. आपके साथ जो है वो आपके बिजनेस में जान भी लगा रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं. दैट्स आर योर वर्किंग पार्टनरशिप्स. ठीक है. Although they are investing the money, okay, although they are investing the money, but they also investing their expertise or their experience to get more business together. Okay? मतलब कि वो अपना काम का तरीकेकार और अपने कनेक्शन यूज करके बिजनेस को और बढ़ा सकते. तो ये कौन सा हो गया? ये पैसा भी लगा रहा है और काम भी कर रहा है. ठीक है. इसके साथ हमारे पास दूसरा पार्टनर होता है, दैट इज ऑल स्लीपिंग पार्टनरशिप्स. ठीक है. तो स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? वो ये होता है कि जो आपकी कंपनी में पैसा तो जरूर इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो आपकी कंपनी में काम नहीं करता. ठीक है. वो आपके साथ पैसा तो जरूर लगा लेता है, बट वो आपके साथ काम नहीं कर रहा होता. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड योर स्लीपिंग पार्टनरशिप. इसी तरह आपके पास जो है कुछ सेलिंग पार्टनरशिप्स होती हैं कि आप कह देते हैं कि यार चले ठीक है प्रोडक्शन मैं कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन के बाद जो है वो जो भी प्रोडक्ट फाइनल गुड्स बनेगी उसको सेल जो है वो एक कंपनी है, जैसे आपके पास आपने देखा होगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स के नाम से, टीएनटी के नाम से, और भी इस तरह डिफरेंट जो है वो आपके पास कंपनियां मौजूद हैं. ठीक है. लॉजिस्टिक कंपनीज मौजूद हैं. ठीक है. जो कि आपके जो है वो पार्टनर्स बन जाते हैं फॉर योर डिलीवरिंग योर गुड्स. जैसे कि हम कहते हैं ना सीओडी कॉस्ट, मतलब पेमेंट ऑन ऑन रिसीविंग जो होती है आपके पास, सही है. ठीक है. तो वो उसके लिए आप जो है वो अपने पार्टनर बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल टीसीएस आपने पार्टनर बना लिया. आपके पास लेपर्ड्स है उसको आपने पार्टनर बना लिया. ठीक है. तो ये दो कंपनियां ज्यादा पाकिस्तान में चल रही होती हैं, खासतौर पे कराची में. तो ये दो कंपनियां जो है ये मतलब वो जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग जैसा प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो आपके पास जो है वो जब आ जाते हैं तो आप उनको पेमेंट कर देते हैं. So this is all the part, all also the partnership between you, your company, because you are selling the goods, and who is delivering the goods? The deliver man is Hong Kong. ठीक है. डिलीवर मैन जो है हमारे पास में कौन है? जो कि आपके पास जो है वो टीसीएस का जो है वो आपके पास डिलीवर है, और वो आपका जो है वो कौन है? वर्किंग पार्टनर है.
टीसीएस आपका वर्किंग पार्टनर बन गया इस जगह पे। इसी तरह आपके पास जो है वो कुछ परचेजिंग पार्टनर होता है। ठीक है। तो परचेजिंग पार्टनर्स कौन से होते हैं? जिनसे आप जो है वो प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे होते हैं। सो इन द परचेजिंग पार्टनर्स, वो आपके जिससे आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं, बेसिकली वो आपके जो है वो सप्लायर्स होते हैं। ऑलराइट। तो आप जिनसे अपना प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, दीज आर योर सेलिंग पार्टनर्स, एंड द परचेजिंग द गुड्स इज फ्रॉम द सप्लायर। अच्छा, फिर आपको उनकी क्वालिटी और ये तमाम चीज़ें जो है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी और क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो अपने पार्टनर्स के साथ किस तरह जो है वो काम कर सकते हैं। और इस कोर्सेज में अगर हम केसेस को डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल चीज़ होगी। तो आपको समझ आ गई कि कितनी डिफरेंट किस्म की जो है वो पार्टनरशिप्स होती हैं। ठीक है। और उसमें जो है वो किस तरह का जो है वो परचेजिंग रोल अब क्या होगा, वो अभी हम यहाँ देख लेते हैं। ऑलराइट। So a company selling wooden products had a very simple purchasing policy। एक कंपनी है जो कि वुडन प्रोडक्ट्स बेचती है, ठीक है, और उसकी जो पॉलिसी है वो बहुत सिंपल सी पॉलिसी है। इट bought the cheapest wood it could find anywhere in the world, down in the workshops they were scraping doors and window frame as if were going out of fashion। मतलब कि एक कंपनी है जो कि परचेजिंग, उनकी पॉलिसी क्या है, ठीक है, सिंपल परचेजिंग पॉलिसी ये है कि वो चीपेस्ट वुड जो है वो फाइंड करते हैं दुनिया में कहीं से भी उनको मिल जाए। ठीक है। और वो वर्कशॉप पे लेके आते हैं उसको। ठीक है। और उसके जो भी दरवाजे और जो भी खिड़कियां, जो भी वो कचरा माल उठाते हैं, ठीक है, उसको डीफ्रेम करते हैं। ठीक है। उसके फ्रेम्स वगैरह को तोड़ के जो है वो जो आउट फैशन जो हमारे पास चीजें होती हैं उसको तोड़ के अपना काम निकालना शुरू कर देते हैं। रैपिंग नॉट्स इन द वुड, फ्लैकिंग, क्रैकिंग, स्प्लिट्स एक्सेट्रा, मतलब जितनी भी चीजें वगैरह उससे निकलती हैं उसको साइड पे करके जो है वो बना लेते हैं। When the purchasing manager was informed, he visited the workshop and explained to the supervisor how cheap the window wood was and instructed them to do the best you can, the customer will never notice। मतलब वो उनको जो है वो अपने सुपरवाइजर को जाके और समझा के आता है, ठीक है, तुम इसके साथ और कितना जो है वो चिपिस्ट काम कर सकते हो। ठीक है। और उनको बताता है और कॉन्फिडेंस देता है कि तुम जो भी करोगे, ठीक है, तुम्हारे कस्टमर नोटिस नहीं करेंगे। On challenging this policy, the the author was told that it would not change until someone proved to the purchasing manager। अब जो ऑथर है इसका वो चैलेंज कर रहा है, ठीक है, that will not change until the until someone prove to be purchasing manager, मतलब जब तक आपको कोई चीज प्रूव नहीं हो जाती तब तक जो है वो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते इन द क्वांटिटेटिव वे। ठीक है। मतलब क्वांटिटेटिव वे तो आप उसको बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है। हमने बात की थी ना इन द स्टार्टिंग ऑफ द इन द कोर्स के वहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। तो क्वांटिटेटिवली तो आप जो है अगर नंबर्स की बात करें कि भाई मेरे पास 10 किलो फॉर एग्जांपल, या 1,000 किलो जो है वो मेरे पास यहाँ पे वुड आ गया है। ठीक है।
तो एज अ क्वांटिटेटिव तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई ठीक है आपके पास 1,000 किलो वुड आ गया, ठीक है। लेकिन आप उसको एज अ क्वालिटेटिव जो है वो आप उसको कर सकते हैं कि आप उसकी बता सकें कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है जो आपके पास वुड वुड जो है वो पहुंच चुका है। दैट द पॉलिसी रॉन्ग, और दैट ईयर द कंपनी लॉस्ट 1 million worth of wood in scrap and rework, you can go out of business waiting for such proofs। मतलब कि इतना उसने क्या किया कि बिल्कुल जो है वो गलत डिसीजन थे उसके, और उसने जो भी अपना इस तरह वुड को जमा किया, ठीक है, स्क्रैप वुड को जमा किया, और वो समझ रहा था कि मेरे कस्टमर्स को नहीं पता चलेगा कि मैं किस तरह का स्क्रैप वुड जमा करके जो है वो अपने प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ। जिस पूरी कहानी लिखी है उसका मैं आपको खुलासा टाइप बता रहा हूँ कि वो उसको नहीं पता चला। वो कहता था कि कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता कि मैं जो हूँ अपना स्क्रैप वुड से जो है या स्क्रैप से जो है वो अपने प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर रहा हूँ। लेकिन ये जो है वो बिल्कुल भी इस तरह पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप जो है अपनी जो भी प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, उसको स्क्रैप से बनाए और आपका बिजनेस जो है वो इस तरह फर्निश करे। आपको कहीं ना कहीं जो है उसको गेट बैक जो है वो देना पड़ रहा होता है, ठीक है। ओके, आफ्टर दी हैव डिस्कस ऑफ दिस केस, हम देखेंगे कि हमारी प्रिक्योर कैसे हो रही है। अभी देखिए इसमें ये जो बात हो रही है ना, ये सोर्सिंग की बात हो रही है, ठीक है। उसने क्या किया है कि वो पूरी दुनिया से सोच तो रहा है, कंपनी सेलिंग वो प्रोडक्ट है, वेरी सिंपल पॉलिसी, ठीक है। मतलब एक कंपनी है जो वुडन बेचती है, उसकी प्रति सिंगल पॉलिसी थी कि भाई कचरा उठाओ और जो है लोगों को बेचो और बोलो हम कचरा नहीं बेच रहे, ठीक है। लेकिन ये पॉलिसी उसकी सही नहीं थी, ठीक है, और उससे जो है उस कंपनी को कितना तकरीबन अ, अगर आप देखें तो उस कंपनी को अच्छा खासा तकरीबन $1 million का जो है वो नुकसान हो गया, ठीक है। इन द स्ट्रैप वर्क यू कैन नॉट गो बिजनेस फॉर सच प्रूफ, मतलब आप किसी प्रूफ के थ्रू जो है बिजनेस नहीं कर सकते। After that, we have a very few organizations are self-contained to the extent that their products and services are all generated at one location। देखिए बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की सेल्फ कंटेंट होती हैं, ठीक है, जिनकी जितनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है कहीं वो एक लोकेशन से जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। मतलब ऐसी बात नहीं है, अगर आप किसी बड़ी कंपनी की अगर आप बात करें, ठीक है, तो वो एक लोकेशन से अपना कोई काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। उनके पास डिफरेंट लोकेशंस मौजूद होती हैं, उनके पास डिफरेंट जो है वो जितनी भी उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का अगर आप देखें, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की आप बात करें, तो वो जो है वो एक जगह पे रिलाय नहीं कर रहे होते, उनके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। जैसे कि आप आर्टिस्टिक की एग्जांपल ले लें, ठीक है। अब आर्टिस्टिक के पास जो है वो कोरंगी के अंदर सिर्फ एक ही रोड के ऊपर जो है वो 5 से 6 यूनिट मौजूद है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अब डिफरेंट जगहों पे अपनी डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इसके साथ आपके पास कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि आपकी जो भी मतलब कि एक कंपनी है उसको जो है एक प्रोडक्ट फिनिश गुड बनाने के लिए जो है उसे पैकेजिंग भी चाहिए, उसको जो है वो उसके ऊपर पॉलीथीन भी जो है यूज हो रहा है, ठीक है, पॉलिस्टर भी यूज हो रहा है, फिर उसके बाद जो है उसको उसमें प्रोडक्ट भी रखनी है, ठीक है, उसको कार्टन बॉक्स भी चाहिए, उसको लॉजिस्टिक्स भी चाहिए। तो इस परसेप्शन से भी अगर देखा जाए तो कंपनी जो है वो एक जगह पे काम नहीं कर रही होती, वो डिफरेंट जगहों पे जो है वो अपना काम कर रही होती है, या डिफरेंट वेंडर्स या सोर्सिंग से अपना काम करवा रही होती है। So very few organizations are self-contained to the extent that their product and services are all generated from one location from basic material. Some material or services are usually purchased from outside the organization। मतलब कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो आप, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से परचेज कर रहे होते हैं। एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू परचेजिंग is to obtain the correct equipment, material and services in the right quantity।
अब उनकी जो प्राइमरी परचेजिंग की जो पॉलिसी होती है ना, वो ये होती है कि वो जो भी चीज खरीद रहे हैं, ठीक है, वो एक बिल्कुल करेक्ट इक्विपमेंट हो, करेक्ट मटेरियल हो और करेक्ट सर्विसेज हो और राइट क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो परचेज करें। क्योंकि एक तो चीज ये है कि वो बाहर से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है कि आपने जो है वो प्रोडक्शन के टाइम पे आपने एस्टिमेट किया कि मेरा इतना माल लगेगा, ठीक है, इतनी क्वांटिटी मुझे रिक्वायर्ड होगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग जब आप काम कर रहे हैं तो आपको पता चले कि नहीं, मुझे थोड़ा सा और जो है वो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। देखिए बेटा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे तो आपको पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो है वो, अगर आपको अपना कोई भी चीज मूव करना है तो उसमें बहुत ज्यादा जो है वो ईमेल्स और बहुत ज्यादा जो है वो अप्रूवल्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सोच सकते हैं, अगर आपको जो है वो बाहर से प्रिक्योर करना पड़ जाए, ठीक है, अगर आपकी परफेक्ट क्वांटिटी आपके पास ना आए और आपको बाहर से प्रिक्योर करना पड़ जाए, तो आपको कितना जो है वो टाइम का हर्डल उसमें दरमियान में आपको फेस करना पड़ेगा। सो दिस इज सम द इश्यूज, ठीक है, ये भी आपके माइंड में होने। ओके। Also, not only for the right quantity, you have to be get the right quality from the right origin, ठीक है। नॉट ओनली फॉर द राइट क्वालिटी, यू हैव गेट फ्रॉम द राइट ओरिजिन, मतलब कि आपको जो है वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आई। कोई कहता है जैसे अभी रमजान चल रहे हैं, ठीक है, एनीवन से आस्क यू फॉर द डेट्स, ठीक है, आपको डेट्स की रिक्वायरमेंट है, अजवा खजूर की आपको रिक्वायरमेंट है, और आपको बोला गया है कि हमें सऊदी अरब की जो है वो अजवा खजूर चाहिए, और आप क्या करते हैं, आप ईरानी अजवा खजूर जो है वो ले आते हैं। तो इज दैट द राइट ओरिजिन? नो। आपने जो है वो प्रोडक्ट तो राइट चूज कर ली, क्वांटिटी में आपने जो है वो राइट मंगवा ली, लेकिन आपने ओरिजिन मतलब जहां से उस प्रोडक्ट को लेके आना था उस जगह को आपने सही तरह राइटली अप्रूव नहीं किया या चूज नहीं किया। एट द एट द राइट टाइम एंड द कॉस्ट, मतलब कि उसके साथ आपको टाइम भी देखना पड़ता है कि आपकी टाइम डोमेन जो है वो कहीं मतलब कि फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, ठीक है, आपको किस टाइम, अब आपने फॉर एग्जाम्पल खजूर का जो है वो आपने डेट्स का ऑर्डर दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मंथ ऑफ रमजान में है, ठीक है, तो इस मंथ ऑफ रमजान के अंदर ही जो है वो मेरे पास जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाई है वो आ जाए। ऐसा ना हो कि वो राइट प्रोडक्ट तो आपके पास आ गई, ठीक है, राइट क्वालिटी भी आपके पास आ गई, राइट ओरिजिन से भी आपके पास आ गया प्रोडक्ट, लेकिन आपके पास जो है वो राइट टाइम पे नहीं आया, तो फिर भी जो है वो आपको जो है वो उस कंपनी में सिर्फ नुकसान ही होगा और उसके अलावा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एंड द राइट कॉस्ट, अब कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब कि आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है, लेकिन एट द राइट कॉस्ट अगर आप उसकी सही तरह नहीं देखेंगे तो भी आपको जो है सिर्फ नुकसान है, कोई फायदा नहीं है कंपनी के साथ उनके साथ काम करने का। सो purchasing can also play a vital role as the organization win- window on the world। देखिए, परचेजिंग जो है ना, एक ऐसा एक रोल भी प्ले कर रही होती है, ठीक है, एक विंडो का रोल प्ले कर रही होती है जो आपका और इंटरनेशनल वर्ल्ड का जो है वो एक रास्ता ओपन करती है। मतलब आप जब भी अपनी कंपनी से कोई भी चीज परचेज करते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे होते हैं, रिलेशंस बना रहे होते हैं, बिजनेस रिलेशंस बना रहे होते हैं फ्रॉम इनसाइड द कंट्री एंड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, मतलब बाहर की दुनिया से और मतलब के इंटरनेशनल वर्ल्ड से, और आपके पास जो लोकल आपके पास जो वर्ल्ड है इसमें जो है वो आप अपने पास कंपनीज के साथ जो है वो रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। कैसे डेवलप कर रहे होते हैं, देखिए, जब भी आप किसी से कोई, आपसे कोई बंदा जो है, आप अपनी एग्जांपल ले लें, आपसे जो है वो कोई साउथ अफ्रीका से आपके पास कोई भी आपके प्रोडक्ट अगर आप कोई सेल आउट करते हैं, राइस की एग्जांपल ले लें, आप चावल एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से, ठीक है, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको जो है वो रिक्वायरमेंट आ गई फ्रॉम साउथ अफ्रीका,
अब साउथ अफ्रीका का जो बायर है वो आपके पास आके फ्लाई करके इनके पाकिस्तान आया, आपसे मिला, बातचीत की, आपने ऑर्डर वार्डर कंफर्म किया, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी, प्रोडक्ट, कॉस्ट, ओरिजिन, टाइम, ये सब कुछ जो है वो आपने सेटअप करने के बाद जो है वो अपनी जो भी डील थी आपने वो फाइनलाइज करके उनके साथ काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने बिजनेस तो किया ही किया, आपने गुड रिलेशनशिप बनाए। ठीक है, और जब आपने बिजनेस के साथ गुड रिलेशनशिप बनाए, ठीक है, तो आपकी विंडो ओपन हो गई फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब आप तो अपनी चीज फॉर एग्जाम्पल बेच रहे हो या खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जब आपने कोई भी चीज बाहर से बेची या खरीदी, ठीक है, अब अगर हम इसको इस तरह देखें कि आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, चाइना से कोई भी आप केमिकल जो है वो परचेज कर रहे हैं, तो आपके अगर गुड रिलेशनशिप बन जाते हैं ना अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ या बिजनेस कि जिनके साथ कर रहे होते हैं, तो उनके साथ एट एट टाइम्स आपकी जो है वो पार्टनरशिप्स हो जाती हैं। अब वो पार्टनरशिप क्या फायदा कर रही होती है आपको, वो पार्टनरशिप ये फायदा कर रही होती है कि एक बार जब आपने किसी कंपनी के साथ काम कर लिया, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल उसने आपको जो है वो गुड्स बेचा है, ठीक है, आपने उनसे खरीदा है, लेकिन सम टाइम वो आपको भी इस तरह की जो है वो इंक्वायरियां दे देते हैं, कहते हैं कि भाई ठीक है, आप जो है वो अब हमारे लिए गुड्स बना के ये चीजें जो हमारी रिक्वायर्ड्स है इसको बना के जो है वो हमें सेल आउट करें। सही है, तो इस तरह की जो है वो आपके पास जो है बिजनेस पार्टनरशिप्स डेवलप हो रही होती हैं, आपको जो है विंडो ओपन हो रहा होता है पूरी दुनिया के सामने। प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन एनी न्यू प्रोडक्ट, मतलब किसी भी न्यू प्रोडक्ट की जो है इंफॉर्मेशन, प्रोसेस मटेरियल एंड द सर्विस दैट become available. It can also advise on the portable design and develop functions. In other words, it should support any partnership in the supply chain. मतलब वही जो मैंने आपसे बात की है ना कि आप एक बंदे से जब कारोबार करते हैं इंटरनेशनली, जब आप एक बंदे के साथ कारोबार कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनका और आपका जो है वो आपस में जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो आप ये देख रहे होते हैं कि आपका जो है वो किस तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी एक रिलेशनशिप हो गया, तो वो जब भी उसको कोई पाकिस्तान से कोई चीज रिक्वायर्ड होगी, अगर आप तो उससे खरीद रहे हो ना, परचेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब उसको कभी पाकिस्तान से कोई चीज रिक्वायर्ड होगी या कभी भी उसके सामने किसी इंसान कोई इंसान उसको बोलेगा कि मुझे पाकिस्तान से कोई चीज मंगवानी है, तो वो फौरन जो है वो आपका नाम रिकमेंड कर देगा। ठीक है, आपका नाम रिकमेंड कर देगा, आपकी कंपनी को रिकमेंड कर देगा। ठीक है, ताकि वो जो भी प्रोडक्ट आ रही है वो आपकी कंपनी के नाम से आए। ठीक है, और आपकी कंपनी को जो है उसका फायदा हो। Okay. Although purchasing is clearly an important area, मैनेजरियल एक्टिविटी, ठीक है, देखिए परचेजिंग जो है ना ये पूरा एक क्लियरली इंपॉर्टेंट एरिया है और एक मैनेजरियल एक्टिविटी है। ये ऐसे नहीं है कि आपने जाके जो है वो परचेजिंग कर ली और कोई आपको जो है वो इसमें कोई डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, नहीं, ये प्रॉपर एक डिपार्टमेंट एक्टिविटी एरिया है। ठीक है, इट इज ऑफन नेग्लेक्टेड बाय बोथ मैन्युफैक्चर एंड द सर्विस इंडस्ट्री। इसको बहुत बार जो है वो निगलेक्ट कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री से। द सेपरेशन ऑफ परचेजिंग फ्रॉम सेलिंग हैज however been removed to in many large retail organizations which have recognized that the purchasing or merchandising must be responsible for the whole product line, its selection, quality, specification, deliver price, acceptability, and reliability. If any part of the chain is wrong, customer satisfaction will suffer. मतलब आप जो भी जो है वो परचेजिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर एक पूरी लाइन में, ठीक है, जो हमने लाइन अभी जो हमने डिस्कस की है, इट्स सिलेक्शन, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी प्राइस, एक्सेप्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। इसमें से कोई भी एक सप्लाई चेन के अंदर एक भी चीज अगर कोई प्रॉब्लम करती है तो होता क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो सफर करती है। This concept is clearly very appropriate on retailing where the transformation activities on the self product between purchase and sale. तो
डिफरेंट जगहों पे जो है ना, जब आप परचेज कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो आप ये देख रहे होते हैं कि जो भी हमारा पूरा प्रोसेस है ना परचेजिंग, उसके अंदर कोई फ्लॉ ना आ जाए, ठीक है। तो यही हमें देखना है कि हम उस फ्लॉ को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, उस फ्लॉ को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, उस फ्लॉ से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने जो है वो कुछ पार्टनरशिप्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, परचेजिंग पार्टनरशिप्स के बारे में हमने काफी दो तीन केस जो है डिस्कस कर लिए हैं। ओके, द परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट, अच्छा परचेजिंग को जो है वो प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं, आप लोगों को शायद पता होगा। परचेजिंग को हम प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको वो बोलेंगे कि हमारा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट होता है ना, रिक्रूटमेंट क्या कर रहा होता है, इंसानों की हायरिंग कर रहा होता है, ठीक है, आपकी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की जो लोग काम करने वाले होते हैं उनकी हायरिंग कर रहा होता है। इसी तरह प्रोक्योरमेंट होता है, प्रोक्योरमेंट क्या कर रहा होता है, वो प्रोक्योर कर रहा होता है, मतलब कि कंपनी को कोई भी बंदा है कोई चीज परचेज करने के लिए जा रहा होता है तो उसकी प्रिक्योरमेंट, जब प्रिक्योरमेंट का प्रोसेस जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि परचेजिंग प्रोसेस, देखिए परचेजिंग और प्रिक्योरमेंट में थोड़ा फर्क है। वैसे तो ये बहुत डीपली कोर्स है पूरा, इसके ऊपर जो है वो एक पूरा कोर्स है सप्लाई चेन में, ठीक है, प्रिक्योरमेंट एंड रिसोर्सिंग के नाम से। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। प्रिक्योरमेंट में आपको सिर्फ ये नहीं करना होता कि आप एक किसी प्रोडक्ट को जाके जब खरीद के ले आए, आपको उसका पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। आपको उस प्रोडक्ट का पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट अपने पास रखनी पड़ती है कि आपने ये प्रोडक्ट क्यों, कैसे और कब खरीदी है, ठीक है, आपको क्या जरूरत पड़ी और आपने कौन कौन से सप्लायर्स और कौन कौन से बायर्स के साथ जो है वो आपने इंटरेक्ट किया, कौन कौन से आपने जो है वो डिफरेंट कोड्स अपने पास जो है वो मंगवाए ताकि आप इसको परचेज कर रहे हैं। इस तरह क्या होता है, जब आप प्रोसेसेस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो दैट विल बी ऑन योर क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब कि आपकी क्वालिटी कंपनी की इस तरह बताई जा रही होती है कि हमारे पास प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी है, हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे जो सेलर्स हैं वो हमारे पार्टनर्स हैं। तो ऐसे क्या होता है, आपकी कंपनी की क्वालिटी अच्छी हो रही थी, अब टोटल क्वालिटी अगर जो कंपनी की है, ठीक है, जो उसकी मैनेजमेंट है वो उसकी उसका लेवल जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। So the first point is assigning responsibility for and within the purchasing procurement functions, defining the manner in which suppliers are selected to ensure that they are continually capable to supply the requirements, specifying the purchasing documents, written orders, specifications, etc. required in any modern procurement activity। सिंपल चीजें हैं इसके अंदर, वो सिंपल चीजें ऐसे हैं कि आपको जो है वो असाइन करनी पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, विद इन द परचेजिंग प्रोक्योरमेंट फंक्शन, मतलब डिफरेंट फंक्शंस के साथ जो है वो आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी पड़ती है। डिफाइनिंग द मैनर इन विच अ सप्लायर आर सिलेक्टेड, मतलब एक मैनर आपको डिफाइन करना पड़ता है कि किस मैनर के थ्रू जो है वो आपके सप्लायर्स जो है वो सिलेक्ट किए जा रहे हैं। इंश्योर दैट दे आर कंटिन्यू कैपेबल टू सप्लाई द रिक्वायरमेंट्स, ये तो बहुत ज्यादा इंश्योरिटी आपको रखनी पड़ती है कि आपका प्रोडक्ट जो जो भी आप परचेज कर रहे हैं अपने सप्लायर से, क्या वो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप उस हिसाब से जो है वो आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी आपकी कंपनी है और आपके पास जो है वो उसकी सप्लायर्स आपके पास मौजूद है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल डेनिम के एग्जांपल ले लें, आप पैंट्स बनाते हैं, डेनिम पैंट्स बना के आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपके पास सप्लायर जो है वो उसकी जो बटन्स हैं उसके आपके पास सप्लायर मौजूद है और आपके पास सिर्फ दो सप्लायर मौजूद है जो आपको प्रोडक्ट पर दे रहे हैं। अब आप उनके ऊपर रिलाय करके अपना आगे का जो है वो ऑर्डर पकड़ लिया आपने, ठीक है, और ऑर्डर जो था वो एज यूजुअल थोड़ा सा ज्यादा था, तो आपने अपने जो टीम थी आपके पास उस टीम को आपने बोला कि हम जो है वो डबल शिफ्ट में काम करेंगे ताकि इस ऑर्डर को जो है वो पूरा कर सके। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, आपके पास जो सप्लायर था वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो आपको इतनी सप्लाईज दे सके, वो आपके साथ इतना फ्लेक्सिबल नहीं था कि वो अपनी सप्लाई की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ा सके। तो इवेंचुअली क्या हुआ, सफर होना शुरू हो गए
कस्टमर्स होंगे, उसके ऑर्डर लेट हो जाएंगे और सफर होना शुरू होगा कंपनी जिसने वो सप्लाई को सिलेक्ट किया था। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे सप्लाई को जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। देन वी हैव द स्पेसिफाइंग द परचेजिंग डॉक्यूमेंट। रिटन ऑर्डर स्पेसिफिकेशंस वगैरह जो है वो आपको देखनी पड़ रही होती है, ठीक है, कि आप जो है जो भी काम करें, ठीक है, उसके अंदर जो है वो अ, जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस होती है वो आपको देख के और देखभाल के जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो करनी पड़ती है। ओके, तो आप अपनी रिटन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि भाई आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, आपको जो है अगर एक्सपोर्ट में जा रहे हैं तो आपको बिल ऑफ लेडिंग चाहिए, आपकी पेमेंट टर्म कौन सी होंगी, ठीक है, आपको रिटन ऑर्डर्स हो, आपके पास परचेजिंग ऑर्डर्स होने चाहिए, आपके पास इनवाइसेस होनी चाहिए, आपके पास रिसीविंग्स होनी चाहिए, आपके पास स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो जो स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट की वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कर रहा होता है।